So in last class, we discussed about the course of esophagus, relationship of esophagus and esophagotomy. Now we will proceed to the stomach in case of ruminant. So in case of ruminant, stomach is a compound. Stomach can comprise of 4 compartments. That is rumen, reticulum, omasum, abomasum. In last class, I told you the percentage contribution of all the compartment. Anyone can tell me about the contribution of reticulum? Yes, very good, 5%. And rumen? Rumen 80%, yes. And omasum and abomasum, they are 7 to 8%. 7 to 8%, 8 to 7% इस टाइप से, जब डिपेंडिंग ऑन आप क्या रेशो लिख रहे हैं, एक में 7 to 8 लिखना है तो एक में 8 to 7 लिखना है, ऐसे, ठीक है. So now first we start with the rumen. It is very important structure और डिसीजेस भी काफी rumen की आपको देखने को मिलती है फील्ड में. तो Okay, ma'am. So first we start with the rumen. Rumen is the largest compartment among all the 4 and it lies left of the abdominal cavity. ठीक है. So first we have to discuss about the topography of the rumen. Topography, you all know, means address of that particular organ. That is called topography. So where we have to locate the rumen? If we want to perform any surgical intervention, we perform any observation, then where we have to locate the rumen? So the rumen is located in the left abdominal cavity, left side of abdominal cavity, and it extended from the 8th rib to the level of pelvic inlet. Rumen is extended from 8th rib to pelvic inlet. अब आपको लगेगा ये rib क्यों आ गया? So last class में मैंने बताया था the diaphragm is oblique in nature. It is dome shape. So actually जो thoracic cage है, thoracic cage, उसका extent अलग अलग लेवल पे वेरिएबल है. जब thoracic cavity भी हम पढ़ रहे थे तब हमने लंग पढ़ा था, तब भी डिस्कशन हुआ था. हार्ट जब पढ़े थे तब भी डिस्कशन हुआ था कि the apex of the heart is lies at the level of 6th chondrosternal joint and opposite to that there is presence of reticulum in the abdominal side. So this level is variable. Lung, the dorsal extent of the lung is up to the level of 13th rib, right? And actually the diaphragm is dome shape. That is why the partition between the thoracic and abdominal cavity is not straight. The partition is variable. Variable मतलब अलग अलग लेवल पे उसका जो extent है that will be differ. ठीक है ना? मतलब thoracic cavity extend तो करेगी, ऊपर तक अगर हम देखेंगे 13th rib तक thoracic cavity जा रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें at the ventral side where the heart, apex of the heart is lying, at that level it is up to the level of 6th chondrosternal joint because here at this level the diaphragm is only a curtain like partition between thoracic cavity and abdominal cavity. मतलब क्या है मेरा कहने का कि अभी हम सारे कंपार्टमेंट पढ़ेंगे. We will see that all the compartments are related with the position of ribs. So rumen extend from 8th rib to pelvic inlet. It is present on the left abdominal wall. ठीक है ना? And if you want to approach the rumen, you have to approach from the left side because in the left abdominal cavity there is no other organ, only the rumen, and dorsolateral to rumen is presence of spleen. ठीक है? So one by one we will discuss. We will also discuss the rumenotomy and approach of rumen. हम discuss करेंगे one by one. लेकिन अभी पहले आप इतना समझिए, rumen is very big compartment extending from 8th rib. 8th rib is the cranial limit up to the pelvic inlet, and most of the part of the rumen it is towards left abdominal cavity, right? अब
पहले एक डायग्राम देखते हैं, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सारे डायग्राम आप देख रहे हो, यू सी हियर दिस पोर्शन एंड दिस, अभी इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। हियर यू सी दैट दिस इज द राइट व्यू ऑफ द ल्यूमेन एंड दिस वन इज द लेफ्ट व्यू ऑफ द ल्यूमेन। राइट व्यू लेफ्ट व्यू का मतलब क्या है? राइट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे, राइट एब्डोमिनल कैविटी को खोलेंगे तो ल्यूमेन ऐसा दिखेगा, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, वी ओपन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, देन वी विल सी द ल्यूमेन लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये दिस आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, ठीक है। सो हियर यू सी दैट दिस इज वेरी बिग कंपार्टमेंट एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ टू सरफेसेस। टू सरफेसेस कौन सा? राइट एंड लेफ्ट। द लेफ्ट सरफेस may be termed as parietal surface and the right surface is termed as visceral surface. तो parietal surface, visceral surface, इसी को हम left surface बोल सकते हैं, and this one will be the right surface of the rumen. So it comprised of two surfaces. Then two curvature. Curvature कौन सा? This one is the dorsal curvature and this one is the ventral curvature. So it comprised of two surfaces, two curvature and two extremities. Two extremities, this one is the cranial extremity, this one is the caudal extremity of the rumen, right? So cranial extremity, caudal extremity, dorsal curvature, ventral curvature, ठीक है। तो इतना आपको अभी थोड़ा सा, you see this diagram here, the relationship is represented. Esophagus is opening over here, this is the reticulum, this is omasum, and here is the abomasum. This is representing the position of all the four compartment, and ये क्या है? ये duodenum है, this is duodenum, ठीक है। This one is the cranial extremity, this one is the caudal extremity. Caudal extremity will be remain at the level of pelvic inlet, right? Now we will discuss the things. The rumen has two surfaces, two curvature and two ends or two extremities. The parietal surface कौन सा surface है? लेफ्ट सरफेस है, ठीक है ना। लेफ्ट सरफेस है, मतलब जब हम लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेंगे, देन दिस सरफेस विल बी विजिबल। पैराइटल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड रिलेटेड टू लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम एंड स्प्लीन, ठीक है ना। नो अदर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द पैराइटल सरफेस. This surface is in direct contact with the left abdominal wall. That is why when we want to approach the rumen, we make an incision at left paralumbar fossa. ठीक है? So this is the reason why we approach the rumen to the left side, because no other organ are present towards here, and spleen is situated dorsolateral the left side. वो extreme dorsal में present होगा spleen, ठीक है ना? So parietal surface is related with the left abdominal wall, diaphragm and spleen. Now the visceral surface diagram में देखा था ना, visceral surface और right surface related to omasum, abomasum, reticulum, intestine, liver, pancreas, left kidney, left adrenal, aorta and vena cava, ठीक है। So visceral surface is related with these structure, क्योंकि rumen का लेफ्ट साइड में कोई और दूसरा ऑर्गन है नहीं, rumen डायरेक्ट बिल्कुल लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल के कांटेक्ट में है। इसके बाद जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, they are related with the right surface. Then the curvature, dorsal curvature and ventral curvature. Dorsal curvature related with the crura of diaphragm. Actually अभी diaphragm नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है क्या diaphragm? No ma'am. अभी नहीं पढ़ा है ना, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा होगा, तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में डायफ्राम भी आएगा। तो अभी रिप्स जब पढ़ेंगे, अभी खैर मसल्स वाला पोर्शन हुआ भी नहीं है, वो एक दिन डायफ्राम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर कोई ना पढ़ा पाए या स्किप हो जाए तो रिमाइंड भी कराना, डायफ्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डोर्सल कर्वेचर रिलेटेड विद द क्रूरा ऑफ डायफ्राम एंड सबलंबार मसल। सबलंबार मसल का मतलब क्या है? द मसल सिचुएटेड below the bodies of lumbar vertebrae, ठीक है ना। So the dorsal curvature of rumen is in contact with the crura. crura क्यों बोला? crura actually diaphragm का जो पोर्शन लंबार वाला पोर्शन है, that is called crura of diaphragm, ठीक है ना।
सो द लंबार पोर्शन ऑफ डायफ्राम, लंबार क्यों, क्योंकि ऊपर से अटैचमेंट आता है ना डायफ्राम का, दैट इज कॉल्ड क्रूरा या पिलर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो द क्रूरा ऑफ डायफ्राम इज रिलेटेड, means this dorsal curvature is related with the crura of diaphragm and sublumbar muscles. Now, ठीक है ना। abdominal floor, अगर आप एक एनिमल में देखेंगे, सपोज एनिमल इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, देन डिपेंडिंग ऑन द फुलनेस ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन भरा है कि खाली है, अगर ल्यूमेन भरा है तो जो उसका वेंट्रल कर्वेचर होगा, द वेंट्रल कर्वेचर विल लाइज ऑन एब्डोमिनल फ्लोर, ठीक है। अब ये देखो, ये देख रहा है, ये ओरिजिनल ल्यूमेन है, अगर ओरिजिनल ल्यूमेन देखेंगे और उसको वॉल को कट करेंगे, ये ओपन करके ल्यूमेन दिखाया हुआ है, ठीक है, ये दिखाते हैं बाद में भी। ल्यूमेन comprised of two surfaces, I told you. So one by one we will discuss the surfaces. The surfaces, left surface, then right surface. Here you see that grooves are present over here. ये जो lines दिख रही हैं, ये क्या है, ये groove है, they are making the partitioning wall inside or interiorly. So they are making demarcation between different sac of lumen. अच्छा ये बताओ कि फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो उसमें ल्यूमिनल मूवमेंट भी पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना, पैसेज ऑफ फूड, कैसे फूड, कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ल्यूमिनल मूवमेंट के बारे में। सब शांत है, कुछ नहीं नहीं, किसका डाइजेशन बताया है? प्रोटीन का बताया गया है और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है केमिकल वाली, वो बताए हैं। प्रोटीन डाइजेशन एंड, है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, हाँ यस मैम। अच्छा, वोलेटाइल फैटी एसिड्स, ये सब की चर्चा हुई होगी। यस मैम, जो जितनी केमिकल प्रोसेस होती है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। देखो इस डायग्राम को भी गौर से देखना, ठीक है, इसी में मैं सब समझाऊंगी अभी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट व्यू ऑफ द ल्यूमेन, राइट। ये दिस वन इज द रेटिकुलम, ठीक है, हियर इज द एबोमेजम, ठीक। This compartment is known as ventral sac of lumen. This compartment is known as dorsal sac of lumen. How these compartment has formed? The compartment, जैसे आपने हार्ट में पढ़ा था, हार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कोरोनरी ग्रूव्स पढ़ा था ना, कोरोनरी ग्रूव्स और लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, देन ट्रांसवर्स ग्रूव. Likewise, here also in lumen, in the left surface, there is presence of left longitudinal groove. So this groove is the left longitudinal groove. ठीक है ना, this groove is the left longitudinal groove. Here is the caudal groove, and on the right side there is right longitudinal groove, and in cranial extremity there is a cranial groove. So cranial groove, caudal groove, right longitudinal groove, and left longitudinal groove. So there are 4 groove, but they are not present at same level. ठीक है ना, कोई symmetrically नहीं, they are not placed symmetrically. So not dividing the whole lumen into 2 equal compartment. You understand my thing? देखो अब आपको एज्यूम करना है चीजों को, ठीक है। सपोज आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बड़ी सी, आप फुटबॉल है, लेकिन फुटबॉल तो एकदम गोल होती है, इट इज नॉट लाइक फुटबॉल, ये लेंथ वाइज ज्यादा है, लेंथ इज मोर कंपैरेटिवली, ठीक है ना, और ये बॉल कोई रेगुलर बॉल नहीं है, एकदम गोल, ठीक। सो इफ यू सी दैट हियर इज वन ग्रूव ओवर हियर एंड सेम ऑन द अनदर साइड, ठीक है, ये this groove is a left longitudinal groove, and on another side on the right surface is right longitudinal groove. फिर इधर होगा एक cranial extremity, there is cranial transverse groove. कैसा होगा, transverse है ना, cranial transverse groove, and here will be presence of caudal transverse groove, जो कि चौड़े हैं, groove है ना ये। देखो मैंने बोला ना, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फूला हुआ बलून है, तो आप उसको
एक ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन से डिमार्केट करो, ठीक है ना। एक बलून है, बहुत खुला वो एयर फिल्ड बलून है, और अगर आप उसमें लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो जो क्रेनियल और कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव होगा, वन एंड विल बी ऑन द on left side and another end of it will be on the right side. सही है ना। तो cranial transverse groove, one end will be towards left side and another end will be towards right side. So this cranial transverse groove and caudal transverse groove, they are joining the right longitudinal groove and left longitudinal groove, so making a complete circle. And this complete circle divide the cavity of the rumen into two halves. The upper one is known as dorsal sac of rumen. This one is known as dorsal sac, and here it is known as ventral sac of rumen. So these grooves basically they are demarcating the compartment of rumen. The upper compartment is known as dorsal sac of rumen, and lower one is known as ventral sac of rumen. In these compartment, ये तो बाहर से हम बात कर रहे हैं, grooves are present externally. We are here discussing the exterior of the rumen, ठीक है ना, exterior of rumen. So externally these grooves are present over here. समझ में आया कि नहीं? Grooves, right longitudinal groove, left longitudinal groove, cranial transverse groove, caudal transverse groove. These grooves forming a circle and dividing the rumen into two halves. The upper portion is known as dorsal sac of rumen and lower portion is known as ventral sac of rumen. Right? अब ध्यान से देखो, left longitudinal groove has one accessory groove. This is known as left accessory groove. This left accessory groove कहां से स्टार्ट हुआ? आगे से स्टार्ट हुआ, किस तरफ डायरेक्टेड है? पोस्टीरियरली डायरेक्टेड है. दिस वन इज द caudal extremity और रेटिकुलम जिस तरफ है, जिस तरफ ईसोफेगस ओपन हो रहा है, that portion is the cranial. Here is the cranial extremity. तो जिस तरफ हम cranial caudal पहले कैसे पहचानेंगे? ऐसे ही. This is the cranial and this is the caudal extremity of the rumen. So left accessory groove started from the left longitudinal groove. It directed caudally upward and then fades out. फिर ये क्या हो जाएगा? Disappear हो जाएगा. ठीक है ना? ऐसे डायग्राम में आप देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है. This one, ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना? This is what left accessory groove. Left accessory groove. ठीक है? अब similarly in the right side, the right accessory groove is present. So right, we can say the right longitudinal groove is bifurcated into two. One is the main and another is accessory. So this one is the accessory groove which started at the right longitudinal groove and ends at right longitudinal groove. ठीक है ना? ये right accessory groove originate or started at right longitudinal groove. It directed posteriorly and then it again meet to the right longitudinal groove, enclosing an area. This area, enclosing an area. This area is known as insula ruminis. This area is known as insula ruminis. Insula ruminis. This area is known as insula ruminis. तो किस तरफ insula ruminis मिलेगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड. राइट साइड मिलेगा ना, लेफ्ट साइड नहीं मिलेगा, राइट साइड मिलेगा इंसुला ruminis. क्यों? The right accessory groove, it is starting at the right longitudinal groove and ends on right longitudinal groove, enclosing an elliptical area. That area is known as insula ruminis, right? So this is the area that is called insula ruminis. So this will be present on the right side of rumen. In the left side there is left longitudinal groove, in the right side there is right longitudinal groove. Left accessory groove is not long
it started and fades out. However, the right accessory groove, it is enclosing in space. That space is known as insula luminis. ठीक है, आपको cranial जो longitudinal grooves हैं, they are making division of whole cavity of lumen into two sac, that is dorsal sac and ventral sac. ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और अभी हमें समझनी है. देखिए, बोर्ड दिख रहा है बच्चों? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? यस मैम. दिख रहा है ना? देखो, अब ये जो कॉर्डल ग्रूव था, ऐसे था ना कॉर्डल ग्रूव, मैंने बताया ना कि देखो ये कोई ये एक फूला हुआ बलून है, तो ये ग्रूव जो होगा वो ग्रूव का एक एंड किस तरफ होगा? राइट साइड पे होगा, और एक एंड किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड पे होगा. ठीक है ना? दे आर लाइक दिस. ठीक है ना? ट्रांसवर्स बताया ना मैंने, ट्रांसवर्स ग्रूव, कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव. कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव ऑन आइदर साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, डिवाइडिंग इनटू अपर एंड लोअर ब्रांच. ऊपर एक है और एक नीचे है. ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो. इस डायग्राम से देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया इसमें मिल जाएगा. ये ब्रांच एक ऊपर ये जा रहा है. ठीक है ना? और बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है ये भी. चलिए मैं बताती हूँ, आप उसको समझिए, फिर देखते हैं और डायग्राम. फिर से समझो, ये कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव है. ऑन राइट साइड इट इज गिविंग अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच, एंड ऑन लेफ्ट साइड इज गिविंग अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच. दोनों तरफ अपर और लोअर ब्रांच जो है वो इट इज गिवन ऑफ ऑन आइदर साइड. उससे क्या होगा? these branching, they are known as right dorsal coronary groove. इनको क्या बोला है? कोरोनरी ग्रूव्स वर्ड बोला हुआ है. राइट डोर्सल कोरोनरी ग्रूव दिख रहा है जहां मैं लिख रही हूं आप लोग को? कैमरा है उधर तक बच्चों? यस मैम. हाँ, ठीक है, दिख रहा है ना? यस मैम. ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? द अपर ब्रांच इज नोन एज राइट डोर्सल कोरोनरी ग्रूव एंड वेंट्रल वन इज नोन एज राइट वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव. So right dorsal coronary groove, right ventral coronary groove. Similarly, here it will be known as left dorsal coronary groove. नाम वही रहेगा, केवल सरफेस के कारण चेंज हो जाएगी टर्मिनोलॉजी. In the right side we will say the right dorsal coronary groove, right ventral coronary groove. In the left side we will say left dorsal coronary groove and left ventral coronary groove. And these are like stitching. जो grooves हैं, they are like stitching. जैसे आप एक कपड़ा है, एक थैला है, उस थैला में सिलाई मारते जा रहे हो. ठीक है ना? So these are like stitching. ये स्टिचिंग इधर कर दी, एक स्टिचिंग इधर कर दी, तो उस तरफ भी एक स्टिचिंग कर दिया. उसके कारण क्या होगा? Now this cavity जो पूरा dorsal sac है, now again compartmentalization will occur over here. So this portion of lumen will be known as chordodorsal blind sac, and this portion will be known as chordoventral blind sac. ठीक है ना? देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है इसमें डायग्राम में chordodorsal blind sac and chordoventral blind sac. So how these blind sac has formed? Because of coronary grooves. Coronary grooves मैंने बताया, these are like stitching. जैसे आपने एक आपका कोई भी मटेरियल है उसमें आप स्टिचिंग करते जाते हो, तो एक उसमें क्या हो रहा है? कंपार्टमेंट बन रहे हैं. There are forming of compartment, but there is no real partition, no complete partition. Only compartment has formed like any pillar in the room. ठीक है ना? This grooves, coronary grooves or not? बताओ भाई, कोरोनरी ग्रूव समझ में आया है कि नहीं आए? मैम एक बार रिपीट करना. फिर से रिपीट करें.
यस मैम, कोरोनरी ग्रुप। कोरोनरी ग्रुव्स। देखो अभी हम फिर से मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो आपने इसको एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना है कि एक बॉल है ना, और बॉल को चारों तरफ आपने एक पेन लिया हुआ है, सब कुछ सिमेट्रिकल नहीं है, सब कुछ अलग अलग लेवल पे है। राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप का लेवल अलग है, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप का लेवल अलग है। बात समझ में मेरी आ रही? सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, बॉल जैसा चीज तो यहाँ कुछ नहीं है, मान लो ये डस्टर ही है, ठीक है, ये डस्टर है दिख रहा है, और ये मान लो फ्लैटेड बलून है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक लाइन आपने खींची यहाँ, तो ये क्या हो गया, राइट साइड में खींच दी तो राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप हो गया। फिर यहाँ से हम यहाँ गए, इसका लेवल अलग होगा, एक जैसा लेवल नहीं होगा, यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, क्रेनियल ट्रांसवर्स ग्रुप हो गया। फिर इधर हमने इधर एक लाइन इधर खींचा तो ये क्या हो गया, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप हो गया। फिर इधर से हमने एक लाइन यहाँ मिलाया तो ये क्या हो गया, क्रेनियल ट्रांसवर्स ग्रुप हो गया। समझ में आई मेरी बात? लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, क्रेनियल ट्रांसवर्स ग्रुप एंड कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रुप, ये पूरा लेवल दे आर meeting each other, forming the two compartment, upper one is dorsal sac, lower one is the ventral sac. अब क्या हो रहा है, जो ये वाला है कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रुप, दिस वन कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रुप, दोनों तरफ एक ऊपर और एक नीचे ब्रांचिंग दे रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, in the left surface also and in the right surface also, on both the surfaces. This is the caudal transverse groove. It is giving branching, upper and lower, on right side also and on left side also. So these grooves, what they are causing? They are causing formation of blind sac, caudodorsal blind sac and caudoventral blind sac. ये पाउच टाइप का बन जा रहा है, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देखोगे, ये डायग्राम देख रहे हो, ये यहाँ देखो, ये इतना डीप होता है, जो कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव इज सो मच डीप। फिर इधर पे एक ब्रांच, इधर पे एक ब्रांच, सिमिलरली ऑन द अदर साइड आल्सो। तो आप क्या देख रहे हो कि एक ही बैग के अंदर और पाउचेस बने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज पाउच हियर इज नोन एज कॉर्डोडोर्सल ब्लाइंड सैक एंड कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक। जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये देखो, ये पिलर एक दिख रहा है, फिर एक ये दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है ना, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, है ना। These are the coronary grooves. ग्रुप्स के बारे में इतना पढ़ा, अब देखो इसमें सब लिखा हुआ है ग्रुप्स। लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव विच इज कंटिन्यूअस विथ cranial transverse groove and caudally with the caudal transverse groove, ठीक है, अभी बात चली थी ना। Left accessory groove arises which run dorsally and caudally and then fades out. The right longitudinal groove is divided into dorsal and ventral branch. They usually enclose an elongated swelling termed as insula luminis. ठीक है ना, elliptical भी बोल सकते हैं, elliptical swelling that is insula luminis, अभी जो मैंने आपको बताया। The cranial end is divided into two blind sac. अभी इसकी चर्चा नहीं हुई है, अभी ये बताऊंगी। The caudal end is divided into two blind sac by caudal transverse groove, ठीक है, and sorry, divided into two blind sac by caudal transverse groove along with coronary groove actually, ठीक है ना। The coronary grooves are prominent on both parietal and visceral surfaces, which separate caudodorsal and caudoventral blind sacs from their original sac, ठीक है ना। मतलब दो कंपार्टमेंट जो डिवाइड हुए थे, उनमें भी पीछे साइड अगर हम देखेंगे कॉर्डल एक्सट्रीमिटी में, then again there is formation of separate compartment, separate pouch which separating it from the rest of the cavity, ठीक है ना। Caudodorsal and caudoventral blind sac from their original sacs, ठीक है। Longitudinal and transverse groove together make the outer demarcation of two sac, ठीक है, ये तो पहले भी बताया है। सारे ग्रूव मिलके एक डिमार्केशन बनाएंगे जो कि that will make the division between the two sac of the rumen, ऊपर वाला dorsal sac, नीचे वाला ventral sac, ठीक है। अच्छा, cranial end की बात चल रही थी। cranial end is divided into two blind sac by cranial transverse groove, ठीक है। जैसे caudal transverse groove डिवाइड कर रहा था, वैसे ही cranial वाला भी डिवाइड कर रहा है। cranial groove
एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, उसी में ही। So this is all about the groups. Groups मतलब बाहर की तरफ. We are observing the lumen from the outside. So these lines will be appearing on the exterior of the lumen. So these lines are known as groups. ठीक है? अब हम चलते हैं interior of lumen पे. Interior of lumen, if we see, अब क्या समझना है आपको? ये समझना है कि आपने बाहर से सिलाई की थी तो अंदर क्या दिखेगा। जब हम कपड़ा उल्टा करते हैं तो क्या दिखता है, दो कपड़े जैसे ज्वाइन करते हैं तो उनकी एक मोटी सी वो दिखती है ना, है ना, परतें दिखेंगी ना, दोनों की मिलाने वाली परतें। तो बाहर आपको केवल एक लाइन दिख रही है सिलाई की, और अंदर क्या दिखेगा आपको, दोनों कपड़े का एक मटेरियल का एक मोटा सा वो मिलेगा, ठीक है। Similarly in the lumen also externally there are presence of grooves, and in respective side there will be presence of pillar. Right longitudinal groove on the interior, there will be the right longitudinal pillar. Similarly left longitudinal groove on the exterior, and interiorly if we see, then there will be the presence of left longitudinal pillar. तो बाहर से जिनको हमने ग्रूव बोला था, अंदर हम टर्मिनोलॉजी चेंज कर देंगे और अंदर हम उनको क्या बोलेंगे, पिलर बोलेंगे, ठीक है। तो क्रेनियल ग्रूव बाहर से बोला था, अंदर क्या बोलेंगे, क्रेनियल पिलर बोलेंगे। बाहर कॉर्डल ग्रूव बोला था, अंदर क्या बोलेंगे, कॉर्डल पिलर बोलेंगे। बाहर हमने कोरोनरी ग्रूव्स बोले थे, अब यहाँ अंदर हम क्या बोलेंगे, पिलर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। The internal surface has pillars which correspond to exterior groove. The cranial pillar is a tilted oblique fold between cranial ends of dorsal and ventral sac of lumen. तो lumen इतना एकदम easy नहीं है एकदम समझना। एक्चुअली हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको जब प्रैक्टिकल देखते हैं तब चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं कि अरे ये तो पढ़ा था, अरे ये देखो हाँ यार ये टिल्टेड तो है, क्रेनियल पिलर टिल्टेड है, ऑब्लिक है ना। और ये कैसे, अभी हमने पढ़ना है एट्रियम ल्यूमिनस पढ़ना है, अभी जो एरिया, उस एरिया को एट्रियम ल्यूमिनस बोलते हैं। तो अभी ये सब चीजें तो हमने पढ़ा, मतलब पढ़ो देखते आप लोग तो बहुत अच्छे समझ में आता, क्योंकि देख के एक बार परसेप्शन जो डेवलप हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए है। समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। इसके वीडियोस देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे, है ना। तो जो पढ़ रहे हो पूरा ल्यूमेन खोल के पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो लोग, है ना। और यहाँ मैं रखा भी हुआ तो मैं दिखा दूंगी आप लोग को थोड़ा सा कि ऐसे दिखता है ल्यूमेन, लेकिन फिर भी जब तक कि आप उठा के हाथ से देखोगे नहीं चीजें तब तक तो डिफिकल्ट है समझना। थोड़ा वीडियोस देखोगे तो जरूर थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्रेनियल पिलर is a tilted oblique fold between cranial ends of dorsal and ventral sac of lumen. And this actually here इसमें नहीं लिखा है अपन, the area atrium luminis is the area above the cranial pillar, ठीक है ना। And this atrium luminis is in continuation with the dorsal sac of lumen, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, क्रेनियल पिलर बोला। ये जो पिलर्स हैं ये कैसे, ये क्रेनियल पिलर शेल्फ लाइक मतलब जैसे घरों में होता ना, घरों में क्या होता है जब मकान में आप देखते हैं कि एक आपने दीवार से एक सेल्फ टाइप की निकाल लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक स्पेस हो जाता है ना। ऊपर में जब हम पट्टी निकालते हैं ना, पट्टी ऊपर चारों तरफ, तो ऐसे यहाँ पे जो पिलर टर्म है, ये पिलर आपको उस वैसे एज्यूम करना है कि अंदर से इतने मोटे हैं ये और काफी मतलब डेप्थ है इनमें। तो क्रेनियल पिलर is tilted oblique fold between cranial ends of dorsal and ventral sac of lumen, and it make an area, that area is called atrium luminis, which is separated from the ventral sac of lumen and in continuation with the dorsal sac of lumen, ठीक है। Then after caudal pillar is very thick and separate the caudodorsal and caudoventral blind sac of lumen. ये जो हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो
अब कैसे समझ में आएगा? आप कभी ल्यूमेन देखा नहीं है, एज्यूम कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये देखो, ये जो मोटा सा बैंड दिख रहा है ना, ये बैंड, ये कॉर्डल पिलर का बैंड है, ये पूरा, ये चौड़ा बैंड जो दिख रहा है ये कॉर्डल पिलर का बैंड है, ठीक है। और एक ये दिख रहा है, ये फोल्ड दिख रहा है ना, ये फोल्ड जो होगा ये राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का फोल्ड, सॉरी राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर का फोल्ड है ये, ठीक है। तो ये अंदर से ल्यूमेन ऐसे दिखेगा, तो ये कॉर्डल पिलर इतना चौड़ा बैंड लाइक होता है, ठीक है। सो कॉर्डल पिलर, एसेसरी पिलर, आपने जैसे राइट एसेसरी ग्रूव देखा था, राइट एसेसरी ग्रूव पढ़ा है ना, तो राइट एसेसरी पिलर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। So an accessory pillar extend from dorsal aspect of right longitudinal pillar that enclose an area insular luminis. बाहर भी insular luminis मिलेगा, अंदर भी हम उसको insular luminis बोलेंगे। एक नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई यहाँ पर? atrium luminis आ गया। So what is atrium luminis? It is present at the cranial extremity of the lumen. It is an area above the cranial pillar of lumen which is in continuation with the dorsal sac and separated from the ventral sac by cranial pillar, ठीक है। दैट एरिया इज कॉल्ड एट्रियम ल्यूमिनिस, ठीक है, ये याद रखना है। हमने ये नहीं पढ़ा कि अभी ईसोफेगस कहां पर ओपन हो रहा है, ठीक है ना। ईसोफेगस इज ओपन एट, ये आप डायग्राम देखोगे, ईसोफेगस ओपन एट अ कॉमन वॉल ऑफ रेटिकुलम एंड ल्यूमेन। यहां से कोई बाहर से कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये रेटिकुलम है और ये ल्यूमेन है, बाहर से कुछ भी, दोनों की वॉल एक है इधर पर, हियर। So this common wall of lumen and reticulum is called atrium ventriculi, where the esophagus open. Clear? So this is called atrium ventriculi. Then another term over here is the luminoreticular groove, जो अभी हमने चर्चा नहीं की है अभी। Luminoreticular groove, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन बाहर से दिख रही है, ये इधर भी दिखेगी और उस तरफ भी दिखेगी, दोनों तरफ दिखेगी। So this line is known as luminoreticular groove, which is on interior, will be termed as luminoreticular fold. पिलर नहीं बोलेंगे अब, यहाँ क्या पे बोला हुआ है? फोल्ड बोला है, luminoreticular fold towards interior, and outside it is known as luminoreticular groove, which making here demarcate the luminal and reticular ball. लेकिन आप ये देखो, ये ग्रूव पूरा यहाँ तक नहीं गया, यहाँ ये खाली है, ऊपर तक नहीं गया है, ये नीचे है, ऊपर से कॉमन वॉल अपीयर होगा रेटिकुलम और ल्यूमेन का। ये ग्रूव विल बी हियर एंड ऑन अनदर साइड, बट विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑफ टुवर्ड्स डॉर्सल। सो हियर इज द कॉमन वॉल ऑफ ल्यूमेन एंड रेटिकुलम। तो इतना समझ में आया आप लोग को ल्यूमेन के बारे में आया? भाई ल्यूमेन क्या है, where it is situated, how its external appearance is there, and what structures in the interior is present, ठीक है ना। फिर से रिवाइज करते हैं हम ल्यूमेन। ल्यूमेन is the largest compartment, 80% of stomach lies on the left of the abdominal cavity, ठीक है। It has two surfaces, two curvature, two ends और extremities, ठीक है। surfaces में ही description है, curvature में तो कोई description है ही नहीं। surfaces has description, the right surface, left surface, है ना। the left surface is parietal one, and on both the surfaces there are presence of grooves, and the grooves are termed accordingly. अभी बताया मैंने, है ना, left longitudinal groove, right longitudinal groove, left accessory groove, right accessory groove, ठीक है ना। right accessory groove enclose an elliptical area, that area is called insula luminis. left longitudinal groove is short, it directed caudally and then fades out, ठीक है। फिर cranial transverse groove, caudal transverse groove, ठीक है। तो ये these are the all grooves which are present on the external of the lumen. अब now if we see the interior there is presence of pillar, ठीक है, cranial pillar, caudal pillar, longitudinal pillar, left longitudinal pillar, right longitudinal pillar, right accessory pillar, ठीक है। फिर coronary pillars बोलेंगे हम। caudal transverse groove है तो caudal pillar होगा। caudal pillar in the groove we see that there is right dorsal coronary groove, right ventral coronary groove. So likewise we see interiorly, then we will say
right dorsal coronary pillar, right ventral coronary pillar, left dorsal coronary pillar, left ventral coronary pillar. समझ में आ रहा है? So this is these pillars are making pouch. मतलब एक बड़े पाउच के अंदर और एक और छोटा पाउच बन रहा है. तो जो ब्लाइंड सैक हैं, ठीक है ना, डॉर्सल कॉर्डोडॉर्सल ब्लाइंड सैक एंड कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक, दे आर द पाउच इन द पाउच. एक बड़े पाउच के अंदर एक छोटा पाउच बन रहा है. ठीक है. फिर इसके बाद आप देखो द वॉल ऑफ ल्यूमेन. वॉल, ये देखो, ये एक वॉल का एक एरिया दिखाया हुआ है ना. द वॉल ऑफ ल्यूमेन इज स्टडीड विथ पैपिले. दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनल पैपिले. ल्यूमिनल पैपिले, और ये उसी का एनलार्ज व्यू है. सो ल्यूमिनल पैपिले आर मोर डेवलप्ड एंड highly dense in the area where the phase will remain for more duration of time. ल्यूमेन में उन एरियाज में पैपिले का डेवलपमेंट ज्यादा होगा जहां पर रफेज का कांटेक्ट ज्यादा होगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इन ब्लाइंड सैक, कॉर्डोडॉर्सल ब्लाइंड सैक, कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक, एट्रियम ल्यूमिनस, वेंट्रल सैक, यहां पर अगर देखेंगे so the luminal papillae are used. But if we see the dorsal curvature, dorsal wall देखेंगे ल्यूमेन का, तो वहां comparatively कम मिलेगा पैपिले. ठीक है, क्योंकि जो फूड होगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा. And the pillars are devoid of papillae. Pillars क्या है? Pillars are devoid of papillae. No papillae are present over the pillars. यही चीज याद रखना है. ये पिलर है, कॉर्डल पिलर है, and there is no papilla over here. So pillars are devoid of papillae. No papillae are present over pillar. समझ में आया? पिलर्स में पैपिले नहीं होंगे. पिलर्स आर स्मूथ, hands on, कॉर्डोडॉर्सल ब्लाइंड सैक, कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सैक, और जो एट्रियम ल्यूमिनस का एरिया होगा, वेंट्रल सैक का एरिया होगा, यहाँ पर पिलर्स बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है. अब एक डायग्राम रेटिकुलम का है ये. तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा लेफ्ट वॉल ऑफ द ल्यूमेन, राइट वॉल ऑफ द ल्यूमेन. ठीक है. देन इंटीरियर ऑफ द ल्यूमेन. Here is this is the right surface. This is the right surface में भी मैंने बोला था ना, the right surface of the lumen related with the omasum, abomasum, reticulum. अभी दूसरे स्ट्रक्चर यहाँ पर है नहीं, दिखाया नहीं है. लीवर, पैंक्रियास, यहीं से कॉर्डल वेना केवा, एरोटा गुजरेगा, तो कॉर्डल वेना केवा, एरोटा से भी रिलेशनशिप होगा. Then left adrenal, left kidney. So the right surface will be related with all these structures. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखो, ये इसोफेगस है. ठीक है. इसोफेगस ओपनिंग ओवर द कॉमन ल्यूमिनोरेटिकुलर वॉल. अभी फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे सब चीजें. ठीक है, कि हाउ द फूड मूवमेंट इज देयर. फूड मूवमेंट आप देखोगे कि में लिखा हुआ है कोई ल्यूमिनोरेटिकुलम में पार्टीशनिंग नहीं है, है ना. तो फिर फूड जो है एक साइकिल चलती है, ल्यूमिनल साइकिल बोलते हैं. ठीक. और आपने ल्यूमिनेशन भी पढ़ा होगा. ल्यूमिनेशन पढ़ा है, कट च्यूइंग, है ना. So here actually we see that फूड जो डाइजेस्टेड है वो आगे पास होगा, और जो कोर्स फूड है वो फिर से बैक हो जाएगा ल्यूमेन में. जैसे ल्यूमेन के बाद रेटिकुलम में गया ना, तो अभी पढ़ेंगे अपन. अभी सारे चारों कंपार्टमेंट पढ़ लें, फिर मैं आपको 1 by 1 बताऊंगी चीजें. Here actually the ingesta passes from lumen to the esophagus back, है ना. So that it is again chewed by the mouth. More saliva is added over in the mouth, and then again it reach to the lumen. ठीक है ना. तो जो जितना ग्राइंड होता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, और जितना कोर्स है वो बैक होगा फिर से च्यूइंग के लिए. ठीक है. अब अगर हम देखें तो ल्यूमिनोरेटिकुलर ग्रूव की हमने चर्चा की. ल्यूमिनोरेटिकुलर ग्रूव. So ल्यूमिनोरेटिकुलर ग्रूव
It is not a complete partition. It is not a complete. Dorsally it is incomplete. Lumino-reticular groove. Dorsally it is incomplete. And interiorly it is known as lumino-reticular fold, which is making the boundary और aperture lumino-reticular aperture. ठीक है ना? तो अंदर की तरफ क्या होगा? ल्यूमिनो-रेटिकुलर फोल्ड होगा, जो एक ओपनिंग है, ल्यूमिनो-रेटिकुलर ओपनिंग, दैट इज गार्डिंग द ल्यूमिनो-रेटिकुलर ओपनिंग. ठीक है. तो अभी तक ल्यूमिन में भी जितना बताया मैंने, इसमें से क्या समझ में नहीं आया आप लोग को, वो बताओ. क्योंकि ल्यूमिन आप मैंने पढ़ा दिया, आगे बढ़ेंगे फिर रेटिकुलम के लिए. मैम इंटरनल में थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा, एक्सटर्नल तो क्लियर है. इंटीरियर है ना. देखो इंटीरियर क्या है, इंटीरियर में क्या मिलेंगे? पिलर्स मिलेंगे. ठीक है. जैसे ये इंटीरियर दिखाया है ल्यूमेन का. ठीक. तो बाहर जो जो ग्रूव देखे थे, अंदर वहां पर क्या मिलने वाले हैं? पिलर मिलने वाले हैं. एंड पिलर मैंने इसीलिए इसको स्टिचिंग से कंपैरिजन किया कि बाहर तो इतनी पतली सी धागा आपको सिलाई दिखती है और अंदर इतना मोटा कपड़ा रहता है, क्योंकि वो दो कपड़ों को मिला के सिला हुआ होता है. तो पिलर भी इसी तरीके से हैं. पिलर अंदर बड़े मोटे मोटे पिलर्स हैं. ये दीज आर पिलर्स. ठीक. तो अंदर कौन कौन से पिलर मिलेंगे? इन द क्रेनियल एक्सट्रीमिटी देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्रेनियल पिलर व्हिच इज शेल्फ लाइक. ठीक है ना. क्रेनियल पिलर इज शेल्फ लाइक. कॉर्डल पिलर इज बैंड लाइक. इनको भी अलग अलग थोड़ा सा बोला हुआ है. कॉर्डल पिलर कैसा है? बैंड जैसा, हेयर बैंड जैसा लगाती है ना, कपड़े वाला हेयर बैंड. कॉर्डल पिलर इज बैंड लाइक. क्रेनियल पिलर इज शेल्फ लाइक. फिर राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर. तो ये जो पिलर है, ये दे आर नॉट सो थिक एज कॉर्डल पिलर. ठीक है ना. सो दिस इज, अब यहाँ समझाना बड़ा मुश्किल है, वो ही जब ऑर्गन सामने होता है तब समझाना इजी जाता है. तो ये क्रेनियल पिलर, ये राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर विल बी प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द ल्यूमेन. ठीक है. सो राइट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल पिलर, कॉर्डल पिलर, क्रेनियल पिलर. फिर कॉर्डल पिलर से ब्रांचिंग होगी. देखो ये छोटी सी ब्रांच जा रही है ना ऊपर कॉर्डल पिलर की, और ये देखो ये नीचे ऐसे ब्रांचिंग होगी. तो ब्रांचिंग क्या करेगी? दिस ब्रांच अगेन डिवाइड दिस कैविटी इनटू सेपरेट पाउच. सो द पाउच will be known as cordodorsal. ये पाउच बन रहा है ना, ये दो पाउच पीछे से, ये पाउच को बोलेंगे cordodorsal blind sac and cordo-ventral blind sac बोलेंगे, है ना. और the area of this here will be known as atrium luminis. कौन सा एरिया बोला जाएगा? atrium luminis. Here will be the cranial pillar. और ये वेंट्रल सैक है. तो क्रेनियल पिलर के इधर वाला जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी नोन एज एट्रियम ल्यूमिनस, which is in continuation with the dorsal sac. dorsal sac के साथ तो through and through है. और नीचे क्या है? क्रेनियल जो पिलर होता है, क्रेनियल पिलर, वो शेल्फ लाइक होता है. that is self like. It is making the partitioning with the ventral sac. ठीक है. थोड़ा सा समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, आज एक वीडियो देखिएगा इसका. ठीक है. यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, हो सकता है उससे थोड़ा सा आप लोग को क्लियर हो, क्योंकि उसमें वीडियो से आपको अंदर की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी, है ना. ऐसे हाँ ऐसे. बच्चों दिख रहा है? यस मैम. दिख रहा है ना? है ना. ये देखो, ये हमने क्या किया हुआ है ल्यूमेन के अंदर, मतलब जब ये फ्रेश ल्यूमेन होता है उस समय इसमें गैस भर देते हैं. पूरा इंजेस्टर रिमूव करने के बाद अंदर बहुत मटेरियल निकलता है. बहुत, इसी कैपेसिटी तो हमने पढ़ी ही नहीं. कितनी कैपेसिटी है? 130 लीटर की कैपेसिटी है. ये 230 कैपेसिटी है ह्यूमन की कैपेसिटी. वाई वेरी ह्यूज कैपेसिटी. ये तो छोटा है, ये किसका है? गोट का है ये. ठीक है ना. तो गोट में थोड़ा एनाटॉमी भी अलग है ह्यूमन का. देखिए दिखेगा ऐसे ही. ठीक है. जैसे ये दिख रहा है, ये मतलब ये बहुत छोटा है. अगर आप एक एडल्ट काऊ का ह्यूमन देखेंगे तो आप उठा नहीं पाएंगे. इट इज वेरी हैवी. तो ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये ऐसे ग्रूव बनते हैं. ये लाइन दिख रही है ना, ये ग्रूव कहलाएंगे. ये ग्रूव, ऊपर वाला डॉर्सल सैक, नीचे वाला वेंट्रल सैक. ठीक है. और पीछे से ये पाउच, अलग से पाउच ये पीछे बनेंगे, तो उनको ब्लाइंड सैक बोला जाएगा. ठीक है. तो ये जो है एक्चुअली ये स्पेसिमेन उतना अच्छा नहीं बन पाया है,
इसमें क्या पूरा इंजेस्टर रिमूव करके एयर भर देते हैं, फिर दोनों एंड से टाइट कर देते हैं, ईसोफेगस से भी धागा बांध दिया, वहां ड्यूडेनम से भी, और फिर इसके बाद इसको धीरे धीरे करके ड्राई होने देते हैं, ऊपर से फॉर्मेलिन का स्प्रे मार के। तो इस हिसाब से पेपर जैसा ये पूरा ड्राई हो गया है। ठीक है, तो बस पलटा के दिखा दो इस तरफ से, ऐसे ये देखो फट गया है इस तरफ से, है ना। तो ये जो पाउच जैसे अलग से दिख रहा है ना, ऐसे दिखा सकते हैं, ये पाउच दिखेंगे तो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, ये देखो ये जो अंदर गहरा गहरा गया है ना, गहरा गहरा अंदर से, ये इतना गहरा होता है कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव। तो ये ऐसे अलग से दो पाउच बनते हैं, एक ऊपर कॉर्डोडोर्सल ब्लाइंड सेक और एक नीचे कॉर्डोवेंट्रल ब्लाइंड सेक। आया कुछ समझ में? समझ में आएगा? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ग्रूव ऐसा नहीं है कि बाहर से लाइन खींच दिया है, ऐसा नहीं है कि लाइन खींच दिया है, जैसे ये वाला देख रहा है ना अंदर कितना डीप गया है, ऐसे होता है कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव, इतना डीप होता है अंदर की तरफ। तो इसी कारण ये दो बल्ब जैसे निकल के आ जाते हैं पीछे साइड ब्लाइंड से, है ना। जैसे देखो डायग्राम में भी कोशिश करो देखने की, देखो अंदर है, अगर ऐसे अंदर नहीं होता तो कैसे बनते ये पाउच, काफी अंदर ये ग्रूव इमेजिन ऐसा होता अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों बन रहे हैं। ऐसे ही क्रेनियल जो ग्रूव है वो भी अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हो ना, ये अंदर की तरफ। तो ये जो है ग्रूव से तो बाहर की से ग्रूव दिखेंगे और अंदर से क्या दिखेगा, पिलर दिखेंगे, ठीक है। यहाँ मान लोग आपको दिखाएंगे भी ना ऑर्गन, तो समझ में नहीं आएगा इतना, बहुत एक ठो पिलर दिखा सकते हैं बस, बाकी तो नहीं समझ में आएगा। तो ruminal papillae, so in the rumen there are presence of ruminal papillae, they are well developed, 1 centimeter तक इनका हाइट होता है, हाइट reach up to 1 centimeter, and where they are present, they are very much developed in blind sac, ventral sac, atrium ruminans, ठीक है ना, and they are not present in area of pillar, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपार्टमेंट हम पढ़ेंगे रेटिकुलम, ठीक। रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब ही होता है एक नेटवर्क, ठीक है ना, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये बड़ा पूछा जाता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो रेटिकुलम इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेटिकुलम स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट 5%, इसका आपको टोपोग्राफी पहले समझ लीजिए। एट द लेवल ऑफ 6th to 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस भी बोलते हैं, छठवें 6 से 7, 6th to 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस। तो छोटा कंपार्टमेंट है, 6th इंटरकोस्टल स्पेस से लेके 7th इंटरकोस्टल स्पेस तक इसका एक्सटेंड will be there। And I told you at the time when I taught you the heart, traumatic reticulopericarditis, याद है कि नहीं? ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस रिकॉल करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद आ रहा है? Yes, ma'am. देखो अब इसकी टोपोग्राफी देखिए, हार्ट का एपेक्स किस लेवल पे था? 6th कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट के लेवल पे था, और रेटिकुलम भी कहाँ आ रहा है? 6th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट? दैट इज व्हाई द पोजीशन इज वेरी अपोजिंग टू ईच अदर। सो रेटिकुलम इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ 6th to 7th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। एंड इट हैज 2 सरफेसेस, 2 कर्वेचर, ठीक। सरफेसेस कर्वेचर तो चलो ठीक है, इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना र्यूमेन का है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, र्यूमेन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और चांसेस मतलब होते हैं 100% टाइप के, मतलब र्यूमेन 100% पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है ही, और र्यूमेन जो एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें लिखने को भी बहुत है, और अभी इसका हम वो भी बताएंगे आपको प्रैक्टिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट र्यूमेनोटॉमी, ठीक है।
तो एग्जाम में मोस्टली र्यूमेन का डिटेल पूछा जाता है। ऑल्दो हमने पढ़ना सभी कुछ है, लेकिन अगर जैसे अभी समझ में नहीं आई चीजें, मतलब आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए र्यूमेन। र्यूमेन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो भूल जाए या छूट जाए। र्यूमेन 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, ऑल्दो कभी कभी चारों कंपार्टमेंट भी पूछ लेते हैं, कभी कभी केवल र्यूमेन पूछते हैं, चारों कंपार्टमेंट का टोपोग्राफी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है ना। तो इसमें भी रेटिकुलम इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सरफेसेस, 2 कर्वेचर्स। सरफेसेस में भी आपने एंटीरियर सरफेस बोला है व्हिच इज रिलेटेड विद द डायफ्राम, ठीक है ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक। एंड पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड विद द र्यूमेन। अभी डेट सही नहीं बना है, पावर पॉइंट को भी ठीक करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक करके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो अप टू हियर आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। मैम हाँ, और कोशिश करिए थोड़ा सा YouTube में देखिएगा चीजें, ये सब तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि र्यूमेन का स्ट्रक्चर क्या है। र्यूमेनोटॉमी डाल के देखना, र्यूमेनोटॉमी, तो उससे थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा ये देखो, फिर कल मैं आप लोग को और बताती हूँ। देखते हैं, मैं टाइम मिलता है तो हम भी कोशिश करेंगे एक आध शॉर्ट वीडियो बनाने का एक्सप्लेन करके, ठीक है ना।